हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। पंजाब पीसीएस मेंस के लिए आपको जो फॉर्म भरना है वो आ गया है पंजाब पीसीएस पीपीएससी की वेबसाइट पे। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म ये फिल करना है। हालांकि ज़्यादा बड़ा फॉर्म है नहीं, प्रीलिम्स की जो इन्फॉर्मेशन है मोस्टली आपकी वही यूज़ होगी। थोड़े बहुत कुछ स्टेप्स हैं वो आज आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, और कैसा आपका फॉर्म फिर दिखना चाहिए, है ना, ताकि आप कोई गलती ना करो, वो हम बताएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है उसकी ऑलरेडी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लेना। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाला जो एक मंथ है उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, कैसे आपको अप्रोच करना है पूरे दिन को, पूरे महीने को आपको, है ना। उसके अलावा भी हर एक किसी को अगर अपनी पर्सनलाइज कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना चाहता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो पहले इंद्रपाल सर आपसे डिस्कस करेंगे फॉर्म को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको उसको भरना है। जी सर प्लीज। सत श्रीकाल जी सारे। सो फाइनली पंजाब पीसीएस मेंस फॉर्म इज आउट, ठीक है ना। बहुत देर तो बच्चे कह रहे थे कि कदों फॉर्म आउट होगा कदों होगा। सो फाइनली द फॉर्म इज आउट। ज़्यादा कोई बड़ा काम है नहीं का फॉर्म भरना, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਹੇਅਰ ਓਪਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪਲਾਈ ਐਂਡ ਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੇਨਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ योर ਸ਼ੀਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਕਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਫॉर 50 words देयर विल बी 1 पेज, फॉर 100 words 10 ਮਾਰਕਰ 2 pages, एंड फॉर 200 words देयर विल बी 3 pages। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1.5 ਪੇਜ ਤਾਂ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ 200 ਵਰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 2.5 ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 50 ਵਰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਪੇਜ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ योर इसमें नीचे होगी ना कॉपी। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, फॉर 50 मार्कर सिंगल शीट, फॉर 10 मार्कर 1 शीट। यही 2 शीटा हो जाएगी। ਤੇ 200 ਵਰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸ਼ੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਨੀ ਸਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जी सर, इसी में वापस करना है पर इसमें एक चीज और है, जैसे कि है ना, यहाँ पे आपको ऑलरेडी वहाँ वो लोग देंगे पेज नंबर। जितना क्वेश्चन अगर मान लो 5 मार्कर है तो लिखा होगा पेज 1 पे क्वेश्चन 1 5 मार्कर, तो ये ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है कि मार्क्स विल बी इंडिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਣਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹੀ ਫਿਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਖਾੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਖਾੜਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਸਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਖਾੜਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੌਗਇਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲੌਗਇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ OTP ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ the information furnished during prelims exam shall be automatically fetched in the mains application form. However, only certain fields shall be editable, namely correspondent address point 1 and other information point 7 and marital status. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਸੀ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਆ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਈਨਰ ਚੇਂਜਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਐਡੀਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Selection of medium of examination. The checkbox for selecting the medium of examination applies only to the 4 general studies paper, and the option chosen shall be final. For the essay paper, candidates will be remain free to write in either English or Punjabi.
द लैंग्वेज पेपर्स इंग्लिश एंड पंजाबी मस्ट बी अटैम्प्टेड ओनली इन रिस्पैक्टिव लैंग्वेजेस। बहुत सिंपल है, मैं क्लीयर कर दिंदा। जीएस के पेपर उन्होंने वास्ते तुसी अपनी प्रैफर्ड लैंग्वेज खुद चूज करनी है। तुसी इंग्लिश लिखना चाहते हैं या पंजाबी विच, वो तुहानू उत्थे मीडियम पुछूगा फॉर्म दे विच, तुसी फिल कर दिओ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश और पंजाबी, ठीक है ना। बट फॉर एसे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ लैंग्वेज का ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ नहीं होगा। ਤੁਸੀਂ पंजाबी भी लिख सकते हो, ਤੁਸੀਂ इंग्लिश भी लिख सकते हो। बट फॉर जीएस पेपर्स ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ फिल किया होया आ, सपोज यू हैव फिल्ड इंग्लिश ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ इंग्लिश 'ਚ ਹੀ पेपर लिख सकते हो, पंजाबी ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ नहीं लिख सकते। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ कर लिओ ਤੇ जब ਤੁਸੀਂ मीडियम भरना आ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ठीक है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਨਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਫਟਰ सबमिशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ, ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਈਡੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਪਰਸਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਲ ਇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। फर्स्ट इज योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है ना, एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स। ये दो चीज़ां ही मेन ने जिहड़ियां तुसीं फिल करनियां ने। बाकी तुहाडा फॉर्म ऑलरेडी प्री फिल्ड है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इहदे विच, ठीक है ना। हो सके तो तुसीं अपना फॉर्म जल्दी तो जल्दी फिल कर लो। एक होर इंपॉर्टेंट इहदे विच इंफॉर्मेशन है दैट प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट्स द ऑफिस ऑफ पीपीएससी। थानू कुछ भी इहदा प्रिंट आउट कढ़ा के तुसीं रखना है, बट किसी भी पीपीएससी ऑफिस नूं थानू भेजण दी बिल्कुल लोड़ नहीं है, उन्हें स्पैशल मैंशन कर दिता है। ओनली टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है ना। बाकी तुहाडा फॉर्म बहुत सिंपल है, जिद्दण सबमिट हो गया 5 मिनटां दा काम है, ठीक है ना। छेती सबमिट करके अपनी तैयारी पर लग जाओ, ठीक है ना। हुण तैयारी किद्दां करनी है, की स्ट्रैटेजी होगी, वो विनय सर तुहाडे नाल डिस्कस करनगे। हाँ जी सर। लगातार जो बच्चों से इनपुट ले रहे हैं, कॉपी वैल्यूएट हो रही है, सर भी गाइड कर रहे हैं बच्चों को, उससे अब लास्ट मंथ आ गया है ना, तो अब बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है, सर कैसे अप्रोच करना है पेपर को। तो आप मान के चलो हमारे पास अभी 30 डेज है, तो एक 30 डेज का मैं आपको प्लान बताता हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है अपने 30 डेज। तो अगर आपके प्लानिंग प्रॉपर होगी तभी आप उसको ठीक कर पाओगे, है ना। तो पहले तो जीएस 1 2 3 4 4 पेपर है, तो ये देखो आप जीएस 1 2 3 और 4, ये 4 पेपर है आपके पास। इसमें हर पेपर को आप दो 6 डेज ईच पेपर। तो ये तो आपकी ब्रॉड प्लानिंग होगी कि आपने जीएस को डिवाइड कर लिया 6 डेज। तो फिर आपके पास अराउंड पूरा महीना 31 का, तो फिर मान लेता हूँ 7 डेज फिर बच जाएंगे आपके लास्ट के, वो आप यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए। तो ये तो ब्रॉड प्लान हो गया आपका कि कैसे आपको अपने दिन को डिवाइड करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक चीज और क्या है, अब इसमें से भी पहले किसको प्रायोरिटी देनी है। आप नॉर्मली बच्चों की टेंडेंसी होती है जब भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जीएस 1 से स्टार्ट करेंगे, और जीएस 1 सबसे ज्यादा लंबा है, प्री में भी जीएस 1 पढ़ते हैं हम। तो मेरा मानना है इस टाइम पे उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, यानी कि कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स देते हैं। तो उसमें अगर ऑर्डर में जाओगे तो मेरे हिसाब से जीएस 4 आपको सबसे पहले करना चाहिए, उसमें आपके टॉपिक्स भी कम है और आपके टाइम भी आपका कम लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना चाहिए जीएस 3, फिर करना चाहिए जीएस 2 और फिर करना चाहिए जीएस 1, क्योंकि इस जीएस 1 को हम कितना भी पढ़ ले हमेशा कम ही लगता है हमें। सब्जेक्ट भी बड़े बड़े हैं, हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिर काफी बड़ा हो जाता है, ज्योग्राफी है। तो ये ऑर्डर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 6 दिन इसको दो आप, 6 दिन इसको, 6 दिन इसको, ऐसे 24 डेज आपका एलोकेट हो गया। अब इसमें भी आपको माइक्रो प्लानिंग करनी है। जैसे मान लो अगर जीएस 3 है, तो अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं इसमें मान लो इकोनॉमिक्स को देता 2 डेज, इको को देता 2 डेज, सिक्योरिटी को देते हम, या मतलब 1.5 हाफ, है ना। और अगर मान लो ऐसे ही 1.5 डेज हम देते आपके स्टैट्स को, और एक दिन में देता पंजाब इकोनॉमी को, पूरा पंजाब का सर्वे बजट और जितना भी होगा उस पूरे दिन में मैं पंजाब का जो एंगल है वो डालता इसमें। तो ये सारे इस तरह से अगर प्लानिंग कर लेंगे तो ऐसे ही सारे पेपर को आपको माइक्रो प्लानिंग करनी है
कि जो आपने 6 दिन अलोकेट किए इनको, उनमें आप कैसे आप अपने इस पेपर्स को दोगे। अब ये तो हो गया पेपर को आप कितने दिन दे रहे हो, लेकिन आपका जो दिन है वो डिवाइड करेगा अलग अलग तरीके से। तो आपको मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम 10 से 12 घंटे तो पढ़ोगे आप, ठीक है। तो आपके जो स्लॉट्स होने चाहिए वो कैसे दिखने चाहिए, तो सबसे पहले आप जीएस को दोगे कुछ टाइम अपना, जैसे आपका जीएस 1 था, 2 था, 3 था, 4 था ना, तो जीएस को आप कुछ टाइम दोगे अपना, है ना। और फिर आप दोगे अपना आंसर राइटिंग को, ठीक है। तो अब इसमें आपको कितना टाइम देना है जीएस को और कितना आंसर राइटिंग को देना है। फिर कुछ पार्ट जाएगा आपका पंजाबी को, इंग्लिश को। ये आपका दिन का मैं बता रहा हूं, दिन में आपने कैसे अप्रोच करना है। तो दिन में कम से कम आप 4 घंटे तो अपने जीएस वाले पार्ट को दोगे, जो आपको पहले रिवाइज करना है, ठीक है। इसमें आपका अगर कोई टॉपिक लेफ्ट आउट है, लेफ्ट आउट टॉपिक्स है, उनको आप देखोगे। प्लस में अगर कुछ आपने ऐड करना है उस पर्टिकुलर पेपर में, यानी कि करंट अफेयर ऐड करने हैं, वो चीज आपने कवर करनी है। तो 4 घंटे तो आप पढ़ने को दे सकते हो अपने, कुछ टॉपिक रह गए आपके जीएस 1 2 3 4 के अंदर, क्योंकि जैसे हमने 6 दिन दिए थे हर पेपर को, तो इन 6 दिन के अंदर भी आपको केवल 4 घंटे मिलेंगे इसको पढ़ने के लिए। तो और नेक्स्ट जो 4 घंटे हैं वहां मेरा मानना है आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है। जितना आप सामने क्वेश्चन पेपर रखो, ठीक है, चाहे आप 4 क्वेश्चन लिखो, 10 क्वेश्चन लिखो, 20 क्वेश्चन लिखो, जितना आंसर लिखोगे, जितना ब्रेनस्टॉर्म करोगे, जितना आ रहा है उतना लिख लो। अगर कोई इवैल्यूएट कर रहा है करवा लो, अदरवाइज मॉडल आंसर पढ़ लो उसके, ताकि एग्जाम में वो चीज क्वेश्चन जो अगर आएंगे तो गलत नहीं होंगे। सबसे ज्यादा फायदा करते हैं आंसर राइटिंग। पढ़ने से आपको पहले पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, मॉडल आंसर में सीधे आपको डेटा नोट्स अरेंज मिलेंगे प्रॉपर तरीके से। तो मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम आपको देना चाहिए, अब 4 घंटे देना चाहिए कम से कम आपको आंसर राइटिंग पे। इसमें आप 2 घंटे आप लिख भी सकते हो, है ना। किसी का अगर फुल लेंथ लिखना है तो 3 घंटे उस दिन लिख लो, किसी दिन अगर छोटे लिख रहे हो तो 1 घंटा लिख लो। तो एक एवरेज 2 घंटा लिखना और 2 घंटा उसके मॉडल आंसर पढ़ना, इसलिए मैंने 4 घंटे इसको दिए। तो 4 और 4 8 घंटे हो गए दिन के अंदर आपके। फिर डेली 1 घंटा आपको देना है पंजाबी के लिए और 1 घंटा डेली देना है इंग्लिश के लिए। और ऐसे का मैं कहूंगा कि आप हर, या तो मान लो कि अगर फुल लेंथ लिखते हो तो वीक में एक फुल लेंथ लिख दो, तीनों ऐसे लिख दो, अदरवाइज हर दूसरे दिन एक ऐसे लिख लो, या 4 दिन के बाद 2 ऐसे लिख लो। इस तरीके से आपका रेगुलर लिखना है आपको ऐसे। तो अगर ठीक मैं मानू तो 2 ऐसे लिख लो आप हर 3 दिन के बाद, ये ठीक है। तो आफ्टर 3 डेज, 3 to 4 डेज डिपेंड करेगा, अलग अलग है ना। तो कोई 3 दिन में करे या 4 डेज में। तो 3 to 4 डेज में आप एक ऐसे जरूर लिख लो अपना, या 2 ऐसे लिख लो, 2 ऐसे, तो आपको एक आइडिया रहेगा। और कभी ये होगा कि एक वीक के अंदर लास्ट वीक में संडे को लिख लिया, तीनों ऐसे लिख लिए, क्योंकि पेपर में 3 ऐसे आएंगे आपके। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को जो लग रहा है मार्क्स ज्यादा वेरी करेंगे, वो करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे जिसने अपना पेपर पंजाबी में मान लो अगर 65 से 70 ट्राई करो आप, सेम इसमें, ठीक है। इसमें भी, ऐसे में भी आप अगर इन तीनों में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करोगे, जीएस में अगर सही तैयारी कर रखी है तो मार्जिन इतना मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको बहुत मार्जिन मिलेगा। तो मेरे हिसाब से डेली चाहे कुछ भी हो, आप हमने वर्कबुक निकाल रखी है पंजाबी की, वो प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की वर्कबुक निकाली, वो प्रैक्टिस, कुछ भी करो, लेकिन लिखो। अगर आपने टाइम डेडिकेट कर दिया अपना कि भाई ये मेरे को देना ही देना है इसको पंजाबी को, तो आप उसको ढंग से करोगे, है ना। अगर आपने टाइम ही डेडिकेट नहीं किया तो निगलेक्ट हो जाता है। अब लास्ट 1 मंथ में पंजाबी, इंग्लिश और ऐसे निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, जीएस 1 2 3 4 ही पढ़ते रह जाएंगे। तो 4 4 8, है ना, और 2 10 घंटे हो गए रोज के आपके। 1 घंटा और जो सोने से पहले 1 आवर, वो मैं कहूंगा रिवीजन, कि आपने कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कुछ पहले मॉडल आंसर लिखे होंगे, कुछ डेटा लिखा होगा, या दिन में जो पढ़ा है उसको वापस रिवाइज। 1 घंटा रोज रिवीजन को जरूर दो आप। तो ये आपको मेरे ख्याल से करना चाहिए, आपका जो शेड्यूल होगा। इसके बाद लास्ट में जो 7 दिन बचेंगे, तो उसमें अगर आपको अगेन फुल लेंथ लिखना है तो फुल लेंथ लिख लो, अदरवाइज जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो। अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि आपको कि टाइम खत्म हो गया या पैनिक करोगे। जितना पैनिक करोगे उतना नुकसान होएगा आपको, तो पैनिक नहीं करना है मेरे हिसाब से, है ना। इसको स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है, अब उस पर चलना है आपको। कुछ में कोई दिक्कत आती है हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ पूछ सकते हो, किस तरीके से अप्रोच करना है, तो ये प्लान आप फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ अगर फुल लेंथ करना है तो हम फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।